Students, continuing from the previous topic, we have started studying the bacteria, the properties of bacteria we have already completed. Now moving on to the next property or next thing about the bacteria, the size of bacteria. The average size of bacteria is around 1 to 5 micron. The E. coli, which is very much common to our body, that lives as a symbiotic bacteria in our body, in our intestine, that is measures about 0.4 to 0.7 micron in diameter. The length of that bacteria is around 1.0 to 3.0 micron. The smallest bacteria reported till date is Dialister pneumocystis that causes an infection in the brain and the nasopharynx. It measures around 0.15 to 0.3 micron in size. The largest bacteria, Bagiotua mirabilis. It is a sulfur oxidizing bacteria. The size of the Bagiotua is 16 to 45 micron. So once again I am repeating all this thing. I am not taking much time on this concept because these all are the fundamental and the hypothetical concept you can easily do by yourself also. The average size of bacteria is 1 to 5 micron. E. coli, which lives in our body, that is 0.4 to 0.7 micron in diameter, and length of E. coli is 1.0 to 3.0 micron. The smallest bacteria is Dialister pneumocystis that causes an infection to the brain and nasopharynx. The size of that is 0.15 to 3.3 micron. And the largest bacteria is Bagiotua mirabilis, a sulfur oxidizing bacteria. It measures around 16 to 45 micron. Moving on to the shape, this is important question. The shape of the bacteria. The shape of bacteria is an important question and always you this is a kind of fundamental portion. आपको जब भी आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हमेशा शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है. Sometimes the name of bacteria is given and the name of bacteria itself defining about the properties of the bacteria, what kind of bacteria it is. So moving on to the shape of bacteria. According to the Cohen has divided or classified the bacteria on the basis of their shape. कोहन ने 1872 में बैक्टीरिया को उनका शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया, डिवाइड किया. अकॉर्डिंग टू द कोहन, the bacteria may be of following shape. The number one are based on the shape. The bacteria is of following type. The number one or first type of the bacteria is called as the coccus bacteria. The shape of bacteria, according to the Cohen 1872, the bacteria can be classified on the basis of shape के basis पे bacteria को following categories में classify किया. The first type of bacteria based on the shape is called as coccus. Coccus singular word है cocci. Cocci is being originated from the coccus. Coccus means particles are the granules. Singular word cocci. Cocci word is originated from the Greek word kokos, and kokos means the particles are granule. My dear child, what I'm describing this again and again because मैंने कल भी आपको बोला था हमको इटिमोलॉजी को समझना है. बायोलॉजी विल बी द इजियर वन. वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, language of the word, and the biology will be easier one. If you are just going to understand the words, so it will be very much easier to learn them. Otherwise आप रटने जाएंगे तो this will be very much difficult for you to go for the learning of biology. So singular word coccus, उसके लिए singular अपन यूज करते हैं cocci, and the coccus word is originated from the Greek word that is kokos. Kokos means what? Particles are the granules. So here what is the coccus means? Coccus means the bacteria which are spherical or oval in the shape. The oval bacteria or the spherical bacteria, circular bacteria is called as coccus. गोल bacteria को अपन बोलेंगे coccus. The bacteria which are spherical in shape, the bacteria जो spherical shape के होंगे, oval shape के होंगे, they are called as coccus bacteria. Remember, these are the smallest bacteria reported. These are the smallest bacteria. The smallest bacteria are always the coccus bacteria. So coccus का मतलब clear हुआ. The oval bacteria or the spherical bacteria are called as coccus bacteria. अब इन बैक्टीरिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. कोकस में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप. कोकस कई तरीके के हो सकते हैं. लाइक दैट सबसे पहला टाइप होता है माइक्रोकोकस. माइक्रो का मतलब सिंगल. कोकस, अगर कोकस बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंटली पाए जा रहे हैं विदाउट एनी ग्रुप, देन दे आर कॉल्ड एज माइक्रोकोकस. सो माइक्रोकोकस दे इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग अलग होते हैं. जैसे मैंने ये ड्रॉप्स बनाई हुई, ऑल दीज ड्रॉप्स आर इंडिपेंडेंट इंडिकेटिंग द बैक्टीरिया, द कोकस बैक्टीरिया. तो वन कोकस, अनदर कोकस, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट. सो ऑल दीज कोकस आर फ्री फ्रॉम अदर वन. सो माइक्रोकोकस मतलब सिंगल यूनिट ऑफ द कोकस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज माइक्रोकोकस. दे आर फ्री फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया.
When we are moving on to the second, diplococcus. Diplo means two, coccus means the spherical bacteria. So here the coccus bacteria will occur in form of the paired structure. So diplococcus, ये देखिए दो pairs के form में आ रहे हैं. Diplococcus, two bacterium. Third one, streptococcus. When the bacteria, the coccus bacteria are present in form of the chain is being produced here. Streptococcus is a chain shaped bacteria. So micrococcus का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट फ्री बैक्टीरिया, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन अदर, अलग अलग यूनिट्स में है. डिप्लोकोकस दो के ग्रुप में आ जाएंगे, पेयर्ड होंगे. स्ट्रेप्टोकोकस, मैनी ऑफ द कोकस बैक्टीरिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ चैन लाइक स्ट्रक्चर. माय डियर चाइल्ड, आपने कई बार बैक्टीरियाज के नाम पढ़े होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, लाइक दैट. सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर अब ऐसा वर्ड आ रहा है तो आपको उसका नाम पता होगा. डिप्लोकोकस वर्ड बोला गया तो दिस इज अ कोकस बैक्टीरिया विच अकर्स इन द पेयर्ड फॉर्म. स्ट्रेप्टोकोकस बोला गया तो दिस इज अ कोकस बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द चैन लाइक स्ट्रक्चर. माइक्रोकोकस बोला गया तो सिंगुलर बैक्टीरिया इट इज देयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, sometime these bacteria present in the group of 4 coccus, sometime the coccus present in the group of 4 bacteria, that time they are called as tetrad. टेट्राड का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेसेरिया गोनोरी. ये गोनोरिया नाम की डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो टेट्राड मीन्स व्हाट? व्हेन द कोकस बैक्टीरिया अकर्स इन द ग्रुप ऑफ 4, इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 like that. Sarcini, the next type of arrangement, when 8 to 64 bacteria arrange in form of the cuboid. जब cuboid के फॉर्म में बैक्टीरिया अरेंज हो जाए, the number of bacteria will be 8 to 64 like that. एक ग्रुप बनाएंगे, 8 to 64 bacteria will be arranged in form of the cuboid, then they are called as Sarcini. स्टेफाइलोकोकस बंच्ड बैक्टीरिया कहलाते हैं या ब्रांच्ड बैक्टीरिया. बंच्ड बैक्टीरिया या ब्रांच्ड बैक्टीरिया मीन्स व्हाट? द चैन अरेंजमेंट विल बी देयर, अलॉन्ग विद द चैन दे आर रैंडमली ब्रांच्ड समवेयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट इन फॉर्म ऑफ द इरेगुलर ग्रुप्स आर द बंच कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस. लाइक दैट. आप देख रहे हैं एक चैन, स्ट्रेप्टोकोकस, सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस, दे मेकिंग अ काइंड ऑफ बंच ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस 1 2 3 लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट द स्टेफाइलोकोकस. तो ये क्लियर हो गया. माइक्रोकोकस सिंगल, डिप्लोकोकस पेयर्ड, स्ट्रेप्टोकोकस चैन फॉर्म, टेट्राड अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ द 4 बैक्टीरिया, Sarcini cuboidal arrangement 8 to 64 bacteria. Staphylococcus means what? Arranged in form of irregular groups or the bunch. Moving on to the second type of bacteria based on the shape, that is Bacillus. The most common type of bacteria they are. Most common means सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया Bacillus बैक्टीरिया होते हैं. Bacillus का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर द सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया. सो द ध्यान रखें, कोकस बोला तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोकस मीन्स व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया. शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा. अब बैसिलस बोल दिया तो बैसिलस सिलेंड्रिकल या तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे. बैसिलस सिलेंड्रिकल और रॉड शेप्ड. अब उसी तरीके से अरेंजमेंट के बेसिस पे बैसिलस भी 3 तरीके का हो सकता है. माइक्रोबैसिलस, सिमिलरली द सिंगल rod shaped unit is present, that time this is called as microbacillus, like that. Independent rod shaped bacteria, एक rod है, एक cylinder है, then this is called as independent rod shaped bacteria. Second one, diplobacillus, paired. 2 bacillus एक साथ मिल जाएंगे और paired bacillus का formation करेंगे, like that. 2 bacillus are fused together to form the diplobacillus. Third one, streptobacillus. Once again, streptococcus में क्या था? चैन फॉर्म था. यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलस है तो स्ट्रेप्टो का मतलब हो गया चैन फॉर्म. वहाँ पे कोकस की चैन थी, यहाँ पे बैसिलस की चैन होगी. सो स्ट्रेप्टोबैसिलस द चैन फॉर्म बैक्टीरिया 1 2 3 4 लाइक दैट. मेनी ऑफ द बैसिलस विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रेप्टोबैसिलस अरेंजमेंट. नेक्स्ट, तो कोकस कैसा हो गया आपका? स्फेरिकल. Bacillus rod shaped. Now next shape of the bacteria is Vibrio. Vibrio a comma shaped bacteria, कुछ इस तरीके से rod shaped होते हैं लेकिन they are somewhat curved. English के comma letter के जैसा होता है. Moving on to the next, spiral bacteria. Spiral bacteria means spiral are coiled like that. These are spiral or coiled bacteria. Spiral arrangement होगा इनका कुछ इस तरीके से. Moving on to the next type. नेक्स्ट और लास्ट है शेप ऑफ बैक्टीरिया में स्पाइरोकीट्स. स्पाइरोकीट्स भी स्पाइरल बैक्टीरिया ही होते हैं, बट स्पाइरोकीट्स आर मच मोर फ्लेक्सिबल देन द स्पाइरल बैक्टीरिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पाइरोकीट इज also similar to the spiral bacteria, but what is the difference between spirochete and spiral?
स्पाइरल बैक्टीरियाज आर मच मोर फ्लेक्सिबल लाइक दैट। ये अगर अपन ने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है तो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। स्पाइरोकीट में, स्पाइरल में क्या था, ए फिक्स्ड शेप इज प्रेजेंट एंड दैट फिक्स शेप कैन नॉट बी चेंज। सो अभी हमने शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन? सबसे पहला स्फेरिकल बैक्टीरिया है, दैट इज माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनिन, ओके, टेट्राड, and finally the staphylococcus. Then we moved on to the rod shaped bacteria, that is bacillus. bacillus में हमने देखा था bacillus, microbacillus, diplobacillus and the streptobacillus. फिर उसके बाद में हमने देखा स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया के बाद में वाइब्रियो, दैट इज कॉमा shaped, and finally the spirochete. They are similar to the spiral bacteria but they are much more flexible than the spiral bacteria. एक बड़ा important point है that I have just written here. Some of the bacteria may not have a fixed shape. They are able to change their shape as per the demand. Are you getting my point? Some of the bacteria, कुछ बैक्टीरिया में उनकी बॉडी का शेप हमेशा फिक्स नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी का शेप क्या होता है, बदलता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड। और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं पॉलीमार्फिक बैक्टीरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जिनमें बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता, रिजिड नहीं होता है। इंस्टेड दे आर एबल टू मॉडिफाई देयर शेप as per the demand, as per the requirement. Such kind of the bacteria which may occurs in more than one form, one shape, कि वो कोकस भी हो सकता है, बैसिलस में भी मिल सकता है, कॉमा सेट भी हो सकता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। सो द बैक्टीरिया विच अकर्स इन मोर देन वन फॉर्म, वन शेप, दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, और यही नीट के क्वेश्चन होते हैं। The example of polymorphic bacteria is Rhizobium. No fixed shape is there. Rhizobium आपने काफ़ी ज़्यादा कॉमन पढ़ा होगा, that present in the roots of leguminous plant, root nodule formation में हेल्पफुल होता है। Corynebacterium या डिप्थीरिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। So is it clear to you all? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता, they can able or they are able to change their shape as per the demand, and such bacteria are called as polymorphic bacteria. Example Rhizobium and Corynebacterium. मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, दैट इज मोटेलिटी। ये एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनसीईआरटी इफ इट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज द नीट एग्जामिनेशन। सो मोटेलिटी का मतलब क्या होगा, मूवमेंट इन बैक्टीरिया। मूवमेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैन मूव आर कैन नॉट मूव। बैक्टीरिया दोनों तरीके के हो सकते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर एबल टू मूव देमसेल्फ और सम ऑफ द बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू मूव। So bacteria may be motile and non-motile. Some bacteria may be motile while some may be non-motile. Is it clear? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो मोटाइल होंगे और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो नॉन मोटाइल होंगे। और अगर मोशन कर रहा है, इफ द बैक्टीरिया इज एबल टू मूव, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन, और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्लैजिला। सो ऑल द मोटाइल बैक्टीरिया विल हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर द मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आपको फाइनल एग्जाम के लिए रेडी रहना इस क्वेश्चन के लिए। सो मोटाइल बैक्टीरिया विल हैव अ फ्लैजिला फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट based on the distribution of the flagella on the surface of bacterial body. बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर फ्लैजिला किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया अगर मूवमेंट कर रहा है, मोटाइल बैक्टीरिया, सो इट विल मूव विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, एंड फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द distribution or the presence or absence of the flagella on the body? सबसे पहला है ए ट्राइकस। ए मीन्स एब्सेंट। ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से आप लोगों को टर्म्स डेवलप करना सीखना होगा। ए जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है विद टर्म्स टुगेदर, ए मीन्स एब्सेंट, ट्राइकस, फिर फ्लैजिला, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट है। सो ए ट्राइकस बैक्टीरिया मीन्स the non-motile bacteria without the flagella. So atrichous bacteria का मतलब क्या हो जाएगा, they are non-motile without flagella. Example Pasteurella, very important. atrichous bacteria non-motile without flagella, like that. हम ये bacillus मान के चलें जिसमें कोई भी flagella नहीं मिल रहा है। So if they are there, so ऐसे बैक्टीरिया most of the time parasitic होते हैं, wriggling movement शो करते हैं और होस्ट के
सेल के अंदर अपना डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं, तो पास्चुरेला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस। ए ट्राइकस, ए मींस एब्सेंट, मोनो मींस सिंगल, ट्राइकस तो इफ द सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट, अब वो किसी भी एंड पे हो सकता है, ऑन एनी वन एंड ऑफ द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट ऑन एनी एंड ऑफ द बॉडी, अगर वो इस साइड है तो एक ही रहेगा या इस साइड है तो भी एक ही रहेगा। सो इज इट क्लियर, मोनोट्राइकस, ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट ऑन एनी वन एंड ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। नेक्स्ट कैटेगरी है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला होता है ऑन एनी वन एंड ऑफ द बॉडी। जैसे अभी हमने मोनोट्राइकस देखा था, मोनोट्राइकस में ओनली वन फ्लैजिला वाज प्रेजेंट ऑन एनी वन एंड ऑफ द बॉडी, बट इन केस ऑफ लोफोट्राइकस द ग्रुप ऑफ flagella, the tough flagella is present on the one end of the body of bacteria. Example है Spirillum undulum. Next one amphitricus. Amphi मतलब दोनों, amphi means both, tricus flagella. तो अभी तक आपने लोफोट्राइकस और मोनोट्राइकस देखा, जिसमें हमने देखा था फ्लैजिला आइदर प्रेजेंट इन द ग्रुप और प्रेजेंट इन सिंगली ऑन ओनली वन एंड ऑफ द बॉडी, बट हियर इन केस ऑफ एम्फीट्राइकस the flagella may present in form of group or singly on both the end of the body, दोनों तरफ, one or more flagella present on both the end of the body, अगर सिंगल है तो भी दोनों तरफ मिलेगा, और अगर टफ्ड है, ब्रंच है, ग्रुप है फ्लैजिला का तो भी दोनों तरफ मिलेगा। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, लाइक दैट यू कैन सी, इफ दिस वन ओनली देयर देन इट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। अब ये दोनों तरफ हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस। अगर इसमें केवल एक तरफ होता तो ये क्या होता, लोफोट्राइकस। अब इसमें दोनों तरफ हो गया तो ये क्या कहला रहा है, एम्फीट्राइकस। सो इज इट क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वन पेरीट्राइकस। पेरी मतलब पेरिफेरल, ट्राइकस फ्लैजिला, तो व्हेन फ्लैजिला इज डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरली ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन द कंप्लीट सरफेस ऑफ द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस। Peritrachus, flagella is distributed on complete surface of the body of bacteria. This one. Is it clear to you all? तो यहाँ पे देख लिया अपन ने, सबसे पहला क्या होता है, एट्राइकस नॉन मोटाइल में व्हेन फ्लैजिला इज एब्सेंट, देन मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला, देन लोफोट्राइकस द बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन वन एंड ओनली, देन एम्फीट्राइकस on both the end of the body of bacteria the flagella is present either singly or in form of the groups. Peritrachus, the complete surface of the body is covered by the flagella, that is called as peritrachus. तो स्टूडेंट ये तो हुआ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। हमने ये देख लिया कि इफ द बैक्टीरिया इज एबल टू मूव, इफ मोटाइल बैक्टीरिया इज देयर, सो दे नीड टू हैव द फ्लैजिलम, एंड ड्यू टू द फ्लैजिलम ओनली दे कैन मूव और लोकोमोट। और फ्लैजिला के बेसिस पे हमने टाइप्स भी देख लिए बैक्टीरिया के। Now this is the time to understand the structure of flagella. Very important question we are discussing. So we are discussing the ultrastructure of bacterial flagellum. My dear child, this is a new term I think for you, the ultrastructure. Ultrastructure means the finest structure. Finest structure कहाँ से मिलेगा? When we are going to study the structure by an electron microscope. तो electron microscopic study करेंगे, तो electron microscopic study के साथ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के साथ में जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दैट विल बी द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर। उससे डेप्थ का उससे अपन डेप्थ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यहाँ हम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर तक जा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द मॉलिकुलर कंपोजिशन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल कंपोजिशन इज देयर। So the ultrastructure is the finest most structure of any of the cell or tissue. So here we are discussing about the ultrastructure of the bacterial flagellum. बैक्टीरिया का फ्लैजिला बाहर से तो देखने में वो कैसा लगता है, एक धागे के जैसा लगता है, that seems like a thread like structure. But what present inside the bacterial flagellum? Just try to understand. जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मेजर करते हैं साइज। तो साइज ऑफ फ्लैजिलम इज अराउंड, लेंथ इज अराउंड 4 to 10 माइक्रॉन, डायमीटर 120 to 180 एंगस्ट्रॉम। Electron microscopic study of the flagella reveals that the bacterial flagella is made of 3 basic parts. 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सामने से तो कैसा दिखाई देता था, केवल एक धागा दिखाई देता था, बट when we observed the structure with the help of electron microscope, we find out the bacterial flagellum is made of 3 parts. The first part is called as basal body, second part is called as hook, and third one is called as filament or soft. हम केवल filament या soft को ही देख पाते हैं बाहर से। Okay, तो one by one we are just going to take out the structures. So first one we are just going to take the structure that is basal body. तो ये क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फ्लैजिला 3 पार्ट में बटा दिखाई देता है। One is called as basal body,
second one the hook, and third one is called as filament or soft. So moving on to the first structure, that is basal body. basal का मतलब base, body means structure. So basal body वो structure होती है जो flagella को base provide करती है, जिसके through flagella is found to be attached to the substratum of the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल के साथ में जिस स्ट्रक्चर के साथ में, जिस पॉइंट के साथ में, जिस कंपोनेंट के साथ में फ्लैजिला जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी. सो दिस इज द डीपेस्ट मोस्ट स्ट्रक्चर, द primitive most structure of the flagella by which the flagella is attached to the bacterial body. So basal body means this is the basal structure by which flagella is attached to the surface of the bacterial cell. So this is what a rod like structure, completely एक rod जैसे structure होती है. रिमेंबर द इम्बेडेड इन द सेल वॉल, हमने देखा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज इम्बेडेड इनटू द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. दिस इज फाउंड टू बी इम्बेडेड इनटू द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ध्यान रखें, दो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव. आई विल डिस्कस फर्दर इन द फर्दर लेक्चर्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, पर अभी हम सिर्फ नाम ध्यान में रखें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब स्टडी की गई बेसल बॉडी की, तो बेसल बॉडी ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज फाउंड टू बी सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट रिंग्स. ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, द हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अब आईपीएमटी अपीयर्स होंगे, एम्स में अपीयर होंगे, देन यू विल सी सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितनी रिंग्स होंगी? 4 रिंग्स विल बी देयर. अ सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. फ्लैजिला इज हैविंग द सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी द बेसल बॉडी इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर. उसके चारों तरफ 4 रिंग्स होती हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग द अरेंजमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. इनसाइड टू आउटसाइड मतलब सेल मेम्ब्रेन से लेके बाहर की तरफ आ रहे हैं. Are you getting my point? Whatever the first layer I am just observing, I am just discussing, that is from the innermost layer, और उससे बाहर की तरफ आ रहे हैं. So सबसे पहले 4 रिंग्स होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सराउंडेड बाय द 4 रिंग्स. द रिंग्स आर इनसाइड टू आउटसाइड. फर्स्ट रिंग एम रिंग. एम का मतलब समझ लें मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब सेल मेम्ब्रेन, द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर. सो एम रिंग, द इनर मोस्ट रिंग, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन रिंग. एम का मतलब मेम्ब्रेन, सो एम रिंग और इनर मोस्ट रिंग आर कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन रिंग. दूसरा एस रिंग, सब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के नीचे, तो ये सेल वॉल के रीजन में आएगी. सुपर मेम्ब्रेन रिंग, एस रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग. अब एम रिंग के ऊपर की तरफ मिलने वाली रिंग है. देन थर्ड वन पी रिंग, ये सेल वॉल के रीजन में आ जाएंगी. एम और एस रिंग जाएगी सेल मेम्ब्रेन के रीजन में, पी और एल रिंग जाएगी सेल वॉल के रीजन में. तो एम रिंग इज इनर मोस्ट रिंग कॉल्ड एज मेम्ब्रेन रिंग. एस रिंग सुपर मेम्ब्रेन रिंग, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? सेल मेम्ब्रेन के रीजन में. पी रिंग द पेप्टाइडोग्लाइकन, पी का मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन रिंग, ये बनी किससे होती है? बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन. सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. एंड एल रिंग लाइपोपॉलीसैकेराइड रिंग, दिस इज द आउटर मोस्ट रिंग. सो इनर मोस्ट इज एम रिंग द मेम्ब्रेन रिंग एंड द आउटर मोस्ट इज द एल रिंग. रिमेंबर 4 रिंग होती ग्राम नेगेटिव में, एम एस पी एल. M is the innermost, L is the outermost, M membrane, S supermembrane, P peptidoglycan, L is the lipopolysaccharide. M and S will present in the cell membrane region and P and L will found there in the cell wall region. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ग्राम निगेटिव में तो 4 रिंग थी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 रिंग होती हैं. कौन कौन सी? M और S. P and L is absent. Are you getting my point? In gram negative bacteria only 2 rings are there. M and S are present, P and L are absent. रट के जाना आपको. This question is very important in NEET examination. So in gram positive bacteria only 2 rings, M and S is present. While in case of gram negative 4 ring, M, S, P, L, M, S in membrane, P, L and cell wall. In gram positive bacteria only 2 rings, M and S, while P and L are absent. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लैजिला की, जैसे हमने देखा था. सबसे पहले था आपका बेसल बॉडी, दैट वी हैव कवर्ड. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला इज द हुक. हुक इज द पार्ट बिटवीन बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट या साफ्ट. फिलामेंट और साफ्ट के बीच में मिलने वाले, फिलामेंट या साफ्ट और बेसल बॉडी के बीच में मिलने वाले स्ट्रक्चर को हुक कहते हैं हम, या कह सकते हैं द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन द बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट. दिस इज द कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन द फिलामेंट एंड द बेसल बॉडी. It works to provide the specific shape to the flagella. ज़्यादा इसमें डिटेल हम नहीं कर रहे हैं. The hook is going to provide the specific shape to the flagella.
हुक इज शॉर्टर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाई लॉन्गर इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये 3 पॉइंट ही ध्यान रखना है। हुक बीच का कनेक्टिंग पोर्शन है जिससे बेसल बॉडी कनेक्ट होती है टू द फ्लैजिला। इसका काम क्या होता है, फ्लैजिला को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना, और लेंथ इज लॉन्गर इन द ग्राम पॉजिटिव इन कंपेरिजन टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Last structure, the outermost structure what we are able to observe in the bacterial flagellum, that is filament. फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर से पूरी तरीके से थ्रेड दिखाई देता है, एक विप के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक चाबुक के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वन कंप्लीटली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है दैट फिलामेंट इज मेड ऑफ अ पर्टिकुलर ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट ग्लोबुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन प्रोटीन। एक सब प्रोटीन का बना होता है, सब प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है, दोज प्रोटीन यूनिट्स आर कॉल्ड एज फ्लैजेलिन प्रोटीन। सो फिलामेंट इज मेड ऑफ विच, अब फ्लैजेलिन प्रोटीन रटना है आपको, अंडरलाइन किया हुआ टर्म है। सो दिस प्रोटीन यूनाइट्स एंड कॉइल्स अराउंड द सेंट्रल हॉलो एक्सिस टू प्रोड्यूस द फिलामेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ ध्यान से देखें, बीचों बीच एक सेंट्रल एक्सिस होती है, दैट सेंट्रल एक्सिस इज कंप्लीटली हॉलो, वेकेंट, पूरी तरीके से खाली होती है, सीधे बेसल बॉडी से निकल के आ रहा है, वो रॉड बेसल बॉडी से आता है, हुक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आगे चल के वो फिलामेंट बनाता है। सो द फिलामेंट इज सेंट्रली हैविंग अ हॉलो एक्सिस, और उसके बाहर की तरफ ये फ्लैजेलिन प्रोटीन कॉइल अप हो जाती हैं और बनाती हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो फ्लैजेलिन प्लस हॉलो एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस कंबाइंस टू फॉर्म द फिलामेंट। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लैजिला इज शोइंग 9+0 अरेंजमेंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली वेन एवर वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेलुलर स्ट्रक्चर, फिलामेंट, सीलिया, फ्लैजिला, तो उस समय हमको ये बताना होता है कि द स्ट्रक्चर इज आइदर शोइंग 9+0 अरेंजमेंट और 9+2 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट या 9+2 अरेंजमेंट का मतलब होता है, 9 का मतलब होता है पेरिफेरल, तो ऑलवेज 9 पेरिफेरल फाइबर्स आर प्रेजेंट, एंड +0, तो जो लास्ट का 0 या 2 है वो सेंट्रल फाइबर को बताता है। सो 9+0 का मतलब है द फ्लैजिला इज हैविंग ओनली 9 पेरिफेरल फाइबर, देयर इज नो सेंट्रल फाइबर प्रेजेंट। हमने देखा दिस इज कंप्लीटली हॉलो एक्सिस, नो सेंट्रल फाइबर इज प्रेजेंट देयर ऑन। सो फ्लैजिला इज शोइंग 9+0 अरेंजमेंट, रटना है आपको ये। In some of the gram negative bacteria, basically in the gram negative bacteria, ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर हो गई, बेसल बॉडी हो गया आपका, हुक हो गया और फिलामेंट हो गया, यही 3 मेजर स्ट्रक्चर होती हैं फ्लैजिला की। लेकिन कुछ एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स लाइक टफ सीलिया के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। सो माइन्यूट प्रोजेक्शंस स्मॉलर देन द फ्लैजिला आर आल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बॉडी सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस भी दिखाई देते हैं। दोज स्मॉल प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्री और पिलाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Body of the gram negative bacteria will have some smaller projections outside, they must be smaller than the flagella, और इनको हम कहते हैं फिम्ब्री या पिलाई। ध्यान रखने की बात है, दिस फिम्ब्रीज आर नॉट रिलेटेड विद द मूवमेंट, दे आर नॉट रिलेटेड एनी वे विद द मूवमेंट, मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता है। दे आर मेड ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन दैट कॉल्ड एज पाइलिन, पिलाई से बना पाइलिन प्रोटीन। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पिलाई 2 टाइप के हो सकते हैं, फिम्ब्री या पिलाई पता चला फ्लैजिला के जैसे ही हैं लेकिन फ्लैजिला से छोटे हैं और बॉडी को कवर करते हैं, ओनली इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पाइलिन प्रोटीन से बने होंगे, नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट। देन व्हाई दे आर प्रेजेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पाइलिन इन द बैक्टीरिया, तो उसके लिए ध्यान रखना है। पाइलिन द पिलाई इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कॉमन और सोमैटिक पिलाई। Common pili or somatic pili that helps in attachment of the bacteria to the substratum. Somatic body से related है, तो somatic pili means what, which is working to help out in the somatic function or the body function. तो ये attachment provide करता है to the substratum, host के substratum के साथ में attach करने के लिए helpful होता है. This is very much common. Help in attachment of the bacteria to the substratum of the host cell. The second type of pili is called as conjugate or sex pili. Conjugate or sex pili बैक्टीरिया में हमने देखा था एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है कंजुगेशन। तो एट द टाइम ऑफ कंजुगेशन दिस पिलाई इज गोइंग टू हेल्प आउट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल। सो कंजुगेट पिलाई और सेक्स पिलाई इज हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द 2 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया जिनके बीच में कंजुगेशन हो रहा होगा, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में ये हेल्पफुल होता है।
सो अभी तक आपने फिलामेंट की पूरी स्ट्रक्चर देख ली है. आई एम जस्ट गोइंग टू elaborate the complete structure by the help of a diagram. अब आपको ये देखना है, समझना है, the three different portion I have just drawn with the help of three different colors so that you can easily understand the structure. ये बेसिक बीच में जो सबसे नीचे का पोर्शन है ब्लैक कलर से ड्रॉन है, दैट इज बेसल बॉडी. बीच में ये येलो कलर का रीजन, दैट इज हुक, एंड फाइनली द ब्लू कलर्ड रीजन इज द फिलामेंट. सो बेसल बॉडी में हमने देखा था सेंट्रल रॉड इज देयर, द रॉड इज प्रेजेंट. बीच में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती थी, रॉड होती थी, द रॉड इज प्रेजेंट. और उसी रॉड के चारों तरफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या होता था, चार रिंग मिलती थी. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में 4 रिंग मिलती थी. सो हियर 1 2 3 4. सो कैसे हैं, 1 2 3 4 फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. मेम्ब्रेन रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग, पेप्टाइडोग्लाइकन रिंग एंड द लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग. सो ये क्लियर हो गया. एम एस पी एंड एल रिंग, ये 4 रिंग होती हैं इन केस ऑफ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग एंड एल रिंग. ठीक है, ये क्लियर था आपको. एल और पी किस में मिलता था, सेल वॉल के रीजन में. तो जहाँ पे 2 रिंग होंगी ये सेल वॉल का रीजन हो जाएगा और द इनर मोस्ट रीजन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन. अब ध्यान देना है आपको, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ओनली 2 रिंग्स आर प्रेजेंट. विच वन आर प्रेजेंट, एस एंड एम रिंग्स आर प्रेजेंट एंड पी एंड एल रिंग्स आर एब्सेंट. तो ये 2 रिंग किस में एब्सेंट होंगी, ग्राम पॉजिटिव के केस में. ओनली 2 रिंग्स आर देयर. सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या बनाएगा आपका, बेसल बॉडी. Now moving on to the next structure which connect the filament to the basal body is called as hook. कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, बीच में एक सिलेंड्रिकल एक्सिस होगा. आगे इसी हुक से एक फिलामेंट निकलेगा, दैट इज हॉलो एक्सिस, और उसके चारों तरफ फ्लैजिलिन प्रोटीन स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे, क्वाइल्ड हो जाएंगे, सो दैट कि दे कुड फॉर्म द फिलामेंट. सो एक्सिस एंड फ्लैजिलिन कंबाइंस टू फॉर्म द फिलामेंट. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला. तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को. फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं, बेसल बॉडी, देन हुक, देन द फिलामेंट आर सॉफ्ट. बेसल बॉडी किससे बना होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज बीइंग एम्बेडेड इनटू द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन केस ऑफ the gram negative bacteria, the central rod of the basal body is having 4 rings from inside to outside. M ring, membrane ring, S ring, super membrane ring, P ring, peptidoglycan ring and L ring, lipopolysaccharide ring. सेल वॉल के रीजन में कौन सी होंगी, P और L रिंग होंगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रीजन में कौन सी रिंग होंगी, M और S रिंग. द इनर मोस्ट इज M, द आउटर मोस्ट इज L. इसके ऊपर की तरफ बाहर आएंगे तो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट इज द हुक. ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक सेंट्रल एक्सिस होता है, दैट इज कंप्लीटली हॉलो. अराउंड द सेंट्रल एक्सिस the flagellin protein coils to form an structure that is called as filament. So this is all about the structure of filament. I think you all have understood, all have gone through the complete concept. Go once again, revise the complete concept. We will meet once again tomorrow with further details of the bacterial structure. Till the time, thank you.